x, y, z, w such that w equal to f of x, y, z, right? So which is a subset of R3 cross R, which is R4. Now here, this is a subset of 4 dimension. So here we can't draw them anymore. They are all after starting from 4 dimension, from dimension, every concept is abstract. Every concept is abstract. That means mathematically, you can prove everything like limit, continuity, differentiability, so on and so forth. But graphically, you cannot draw them. That means your imagination exhausts here. Imagination exhausts here, right? So similarly, we can generalize this concept up to, let's say, y equal to f of x1, x2, so on up to xn. So here, our function depends upon n independent variables, and y is dependent on x1 to xn. तो ग्राफ ऑफ f क्या हो जाए? तो f कहां से कहां है? f starts from Rn to R. Okay. So graph of f is this set such that y equal to f of x1, x2 up to. Okay. So they told you these things, the book. So basically in your syllabus you will study function of 2 and 3 variables in detail. Okay, function of 2 and 3 variables. तो ये जो भी जितने भी कंसेप्ट हम फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल में सीखें, those concepts will illustrate in 2 and 3 variables. Then we'll say that these concepts can be extended up to n variables. Okay, u as a function of this n variables. Okay, so the domain. See the definition of domain. Let's try to understand these two definitions. A function of 2 variables x and y is a rule that assigns unique real number f of xy to each point xy in subset D in xy plane. So that means a function from R2 to R. So unique real number कौन सा है आपका? Unique real number is Z. Unique real number is your Z. Okay, and xy, the domain is what? The domain is your two-dimensional plane. Domain is in 2D. Okay?
Domain is in 2D. So it says a function of two variables x and y is a rule that assigns a unique real number f of xy, which is your z, each point xy in some set D in the xy plane. D may be this, which is a subset of R. D is a subset of R. Similarly, they extend it to three variables. A function of three variables x, y, z is a rule that assigns a unique real number f of x, y, z to each point x, y, z in some set D in three-dimensional space, where D is a subset of R. Okay, so this is your first example. So let's try this example and try to find out the domain. F over y plus 1 plus ln x square y. Then also find f of e0. So now how you are going to find out the domain? So consider the first part, root over y plus 1 under root. So this part will be always greater or equal to 0. From here you get that y is greater or equal to minus 1. And what about the second part, ln x square minus y? From here what you can conclude? This part will exist whenever x square minus y is greater than 0. So from here you can say that y is less than x square. Okay. So what will be the domain? When both these conditions satisfied simultaneously. Both these conditions satisfies simultaneously. So here the function is from R2 to R, right? Z equal to fxy. So your domain is a subset of R2. So we need to find that D. So y is what? Y lies between minus 1 to x square. Sorry. Minus 1 to closed minus 1 to open x square. That means y belongs to this. Okay. So what is this? This is a subset of R2. This is your D. This is your D, right? Now, so as it is a subset of the two-dimensional plane, we can draw it. We can draw the domain. So this is y equal to minus 1. Y equal to minus 1 line. This one. And y equal to x square will be parabola, concave upward. Now your domain will be this whole region. This whole region, okay? This whole region is your domain. Now in here, this line is included and this parabola is excluded. Okay? Let's see the diagram here. This dotted line is excluded and this solid line is included. This will be the domain. So now try to find out what will be the domain of this function f of root over 1 minus the function. Yes. And of course, you can straight away find out this value f of e0. Just put
x की जगह पे पुट करना है, y की जगह पे आपको 0 पुट करना है, ठीक है। दिस विल बिकम 1 प्लस ln square, that is 2, that is 3. So this is equal to, so what will be the domain of this function? F is from R3 to R. So here domain is a subset of R3. Now can you tell me what will be the domain here? यहाँ पे डोमेन क्या होगा? Guys, not that difficult. बताओ। सर 1 से लेके 0 तक, मतलब 0 से 1। Anyone else? और कोई है? चंदर प्रेजेंट है? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। एग्जैक्टली तो वो क्या होगा? सर तो अगर जो भी है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, तो कभी 0 से कम हो ही नहीं सकता, तो फिर वही सर 1 से 0 ही आएगा। इतना तो सर मेरा भी है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो 1 से कम होगा, पर सिर्फ फिर ये पॉजिटिव नंबर ही होंगे ना, तीनों का सम पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, 0 से तो लेस हो ही नहीं सकता कभी। ये डोमेन है ना, सही लिखा मैंने? अब एनी आइडिया? सर एक बात बताना सर, हम्म। सर ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है सर, तीनों पॉजिटिव नंबर होंगे? कुछ नहीं पता हमें, वी सर डोंट नो अगर आइडिया। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दे रखा है। सर चाहे रियल नंबर है ना सर, तो अगर हाँ एक हाँ, रियल नंबर डालोगे तो उसका स्क्वायर करोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना सर। नहीं मैंने जो लिखा है, आर यू एग्रीड? डू यू एग्री विद दिस? दिस इज द डोमेन सेट। आया तो है ऐसा। है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस द डोमेन ऑफ एफ इज ए स्फीयर centered at 0 0 0 with radius 1, है ना? ये आपका डोमेन है। आपका डोमेन 3 डायमेंशन में है ना, तो आपको यही चीजें देखनी थी। यहाँ पे आपका 3 डायमेंशन में एक स्फीयर बन रहा है, ठीक है? तो ये आपका डोमेन है, और इस स्फीयर का क्या है? बाउंड्री पॉइंट्स एज वेल एज द होल स्फीयर इनसाइड। तो ऑल दोस पॉइंट्स विल बी योर डोमेन। ओके, so for each and every point inside the sphere you are going to have a real number, you are going to have a real number. Okay, so मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। you need to visualize. मैंने बोला 2D और 3D function of two variables and three variables. These are the two kinds we are going to study elaborate. Now whenever you have a function of three variables, you cannot draw the function, the whole function, because this is equal to w. तो आपका जो ग्राफ होगा वो किसका सबसेट होगा? R4 का सबसेट होगा। बट वी लिव इन व्हाट? वी लिव इन R3। हम लोग R3 में जीते हैं, राइट? तो जो बंदे फिजिक्स के हैं उनको थोड़ा सा फेमिलियरिटी होगी। यहाँ पे एक एंड फोर्थ डायमेंशन जो है, फोर्थ डायमेंशन दे कंसीडर टाइम। फोर्थ फिजिक्स में आप लोग फोर्थ डायमेंशन तक इमेजिन कर सकते हो। दैट इज बेसिकली थ्री डायमेंशन ओनली, बट टाइम के चेंज होने के साथ साथ जो एक्सप्रेशन है हमारा वो चेंज हो जाता है। सो दैट्स ए pseudo 4 dimension you can say. तो
आपको बताना योर डोमेन ऑफ एफ इज a sphere centered at 0 0 0 with radius 1. Okay, boundary points included. Okay. So there is a new name for it. They call it natural domain. Natural domain is nothing but domain of more than one variable. ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गया. देखो, तो वैल्यू ऑफ is this one. This will be a domain. We see the natural domain of it consists of all points on or within the sphere x square plus y square equal to x. Now functions described by tables. तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है लीनियर इंटरपोलेशन का. दिस कम्स फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस जो आपका G4 में है, आई थिंक G4 में. दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर आप लोग करोगे, दैट्स इन 4th सेमेस्टर. तो तब हम न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन वगैरह सीखेंगे. तो फिलहाल के लिए यू कैन स्किप दिस पार्ट. यहाँ पे बेसिकली मैं मोटा मोटा तरीके से यही बता देता हूँ. जैसे कुछ कुछ फंक्शन है, जैसे ये एक फंक्शन है. दिस इज कॉल्ड द सम इंडेक्स, चिल इंडेक्स, क्या कहते हैं इसको, नेशनल वेदर सर्विस, हाँ, wind chill index. This W is called wind chill index which depends upon the temperature and velocity of wind. Okay, तो ये एक फिजिक्स का इक्वेशन है. तो बेसिकली हमें इसका तो ये W डिपेंड्स अपॉन f ऑफ T एंड V. तो ये बेसिकली अगर हम ड्रॉ करेंगे, which is very difficult, मैथमेटिक्स के अलावा आप इसको ड्रॉ नहीं करोगे, दिस विल गिव अस सम सरफेस इन 3 डायमेंशन. तो उस सरफेस को तो हम देख तो पा नहीं रहे अभी फिलहाल के लिए, राइट. तो यहाँ पे ये लोग जैसे हमने ड्रॉ करना सीखा था ना टेबल बना के, ठीक है, 2 वेरिएबल का. तो यहाँ पे आपका 3 वेरिएबल हो गया, तो ऐसे एक टेबल बनेगा. तो वहां से हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से हमारा जो है ये विल चिल इंडेक्स W जो है वेरी करेगा. तो कई बार क्या हो जाता है कि यहाँ पे देखो 20 25 30 35 है, 5 15, तो 5 5 का गैप है इसमें. तो लीनियर इंटरपोलेशन विल टेल यू ए मेथड बाय व्हिच यू कैन फ्रॉम दिस टेबल ओनली you can predict. Linear interpolation always predicts. It is not the real value, it's the prediction that what if there is a value. यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर 23 डिग्री हो और यहाँ पे आपका अगर वेलोसिटी अगर आपका 7 हो, 7 miles per hour हो, then what will be the wind chill index? You can calculate that from these values only. That is basically. तो और उसके साथ साथ आप ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हो. तो वहां उसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है दोनों वैल्यू. दैट इज कॉल्ड द एरर. सो दीज आर पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस जो आप लेटर स्टेज में अगर आप मैथमेटिक्स लिखोगे तो लर्न. नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स. तो ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स क्या होगा, ये आपका 3D में ग्राफ बनेगा जो मैंने अभी बताया. इफ अगर आपका एक्स वाई में होगा तो इसका ग्राफ जो होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ R3. ओके, तो देखो कुछ कुछ हमारे पास नोन इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिससे हमें हमें बेसिकली वी आर फेमिलियर विथ 2 डायमेंशनल ग्राफ, राइट. हमें 2 डायमेंशनल ग्राफ और 3 डायमेंशनल का कुछ कुछ हम फेमिलियर है, ठीक है. तो सारे चीजें हम इस नॉलेज से नहीं निकाल पाएंगे. तो उसके लिए हमें एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, दैट इज द कॉन्टूर प्लॉटिंग और लेवल कर्व. तो ये एग्जांपल देख लो. द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस इज अ प्लेन बेसिकली. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ईच एंड एवरी कोएफिशिएंट जो है ये सारा कोई पावर वगैरह है नहीं. यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दिस में भी है प्लेन, ठीक है. यहाँ पे किसी का भी स्क्वायर या क्यूब नहीं है. तो ये एक आइडिया ही है और यू कैन यूज द दैट टेबल थिंग. आप वैल्यू ले लेके आप पुट करके देख सकते हो. नेक्स्ट इज दिस वन. This one. So this will be a sphere. What is this part?
एफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसका ग्राफ का कोई आइडिया कैसे करोगे? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस ग्राफ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक आप कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, राइट? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कैन यू टेल मी, फिर जितना नॉलेज आप लोगों का है वहां से आप कुछ कह सकते हो? दिस इज बेसिकली ए टू नैप्ड कोन। ओके, दिस इज बेसिकली ए टू नैप्ड कोन जो हमने कॉनिक सेक्शन में देखा था, लाइक दिस। ओके, बट यहाँ पे जो है हमारा नेगेटिव पार्ट है। ओके, तो हमारा जो ग्राफ होगा दैट विल ओनली द दिस पार्ट, विल नॉट टेक दिस पार्ट। तो देयर इज नो वे इफ यू, ये अगर आपको पहले से पता नहीं होगा या फिर यू डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर टू ड्रॉ दिस ग्राफ, आप बता नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, आप z और x एंड y की वैल्यूज ले सकते हो, बट वैसा वैल्यू लेके इस तरह का प्लेन का बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट? तो के लिए अभी हम एक मेथड सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला सी टेबल 11.7.1। the graph of given function is this, which is the equation of a circular cone. Okay, since 3 imposes the condition that z is less than 0, the graph is just the lower nap of the cone of this। यहाँ पे अगर आप पूरा लेते हो जैसा मैंने लिया था अभी, z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हो, तो बेसिकली एज दिस इज कंसिडरिंग द नेगेटिव साइड। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है आपका। तो ये आपको टेबल से ही करना है। तो यहाँ पे 11th चैप्टर में दे फॉर्म ए टेबल एंड फ्रॉम देयर दे आर आस्किंग यू टू इमेजिन दैट, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस concept that is called level search, that is called level search. Now if you understand this concept, then you will learn how to draw these kind of graphs। इस तरह से आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। सो दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फ्यूचर आल्सो, is called contour diagram। contour diagram, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, ठीक है? तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक इसका बहुत आसान एग्जांपल है। आप लोगों के पास घर पे ग्लोब है, ग्लोब टेबल में जो रखते घूमता है ना? यू हैव दैट ग्लोब, या फिर देखे होंगे आप लोगों ने। और आपके पास जो प्लस टू में आप जियोग्राफी वगैरह या फिर 10th क्लास में आप जो जियोग्राफी पढ़ते हैं, वहाँ पे जो हमारा एटलास की किताब होती है वहाँ पे वर्ल्ड मैप भी होता है, जो हमारा एक टू डायमेंशनल प्लेन में होता है, राइट? वर्ल्ड मैप जो होता है आपने देखा होगा, दैट इज इन ए टू डायमेंशनल पेपर, एटलास में दिया रहता है। और जो आपका ग्लोब है जो टेबल में रहता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे एक यहाँ पे स्टैंड होता है, ठीक है? सो दिस रोटेट्स एक्सेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सेस के अलोंग। तो हाउ दे आर कन्वर्टिंग दिस मैप इनटू हियर, how they are converting this map into here? So the method is called contour plot। So this method basically discovered by the cartographers। cartographer किसे कहते हैं? You know who calls cartographers?
कार्टोग्राफर्स किसे कहते हैं? सर जो मैप बनाता है। मैप बनाते हैं, एग्जैक्टली। दोसु मतलब इनके पास कोई रेफरेंस नहीं होता, दे आर बेसिकली यूज ए स्पेशल मैथमेटिकल टेक्निक। तो इस- जो शुरू में होगा, आई हैव माई व्हाट आई कैन से, माई अंकल वाज ए कार्टोग्राफर इन आर्मी। So, okay, let's see. What is this level curve or contour plotting? Okay. Now, हम स्टार्ट करेंगे स्फीयर और सर्कल से। This is the equation of a sphere and this is the equation. है ना? तो अब हम इसका तो राइट, तो ओके, सॉरी, स्फीयर जो होगा वो आपका यहाँ पे होगा, राइट, एंड द सर्कल इज हियर। Okay, now I'm saying, now what will happen if you just compress this, you just compress this sphere। जैसे मान लो ये जो स्फीयर है, दिस इज मेड ऑफ व्हाट, पेपर। कंप्रेस दिस स्फीयर अलोंग द वाई जेड एक्सिस। तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा हमारा, कंप्रेस करने के बाद ये एक एक्स वाई एक्सिस पे एक सर्कल बन जाएगा ऐसा। इसको अगर दोनों साइड से आप कंप्रेस कर दोगे, राइट, आप सोच पा रहे हो, इफ यू जस्ट वैनिश Yes, वन, sir. यू जस्ट वैनिश Yes, वन sir. डायमेंशन, जेड को अगर आप वैनिश कर देते हो तो ये एक एक्स वाई एक्सिस पे एक सर्कल बन जाएगा। तो मान लो ये जो स्फीयर है इसका हमने लेवल बना दिया, दैट मीन हमने ऐसे प्लेन ड्रॉ करा, यहाँ पे एक 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 प्लेन ड्रॉ करा। अब हम क्या करेंगे, अलोंग दिस प्लेन हम काट देंगे स्फीयर्स को, तो हमें इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। यहाँ पे एक सर्कल मिलेगा, 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 ठीक है। और इन सारे सर्कल्स को अगर आप एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हो तो ये क्या देगा आपको, कंसेंट्रिक सर्कल देगा, कंसेंट्रिक सर्कल देगा आपको। तो दिस इज बेसिकली द, तो आपको आपने जो ये प्लेन ड्रॉ किया है ना, तो उसको आप लेवल कहोगे। तो दिस इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो ये क्या है, लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में ये गैप किस पे डिपेंड करेगा, आप कितने डिस्टेंस पे इस प्लेन को आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द, ये जो हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द लेवल कर्व और कॉन्टूर
डायग्राम। तो ये कॉन्टूर डायग्राम आया कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप z की डिफरेंट वैल्यूज के लिए z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 4 के लिए आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। टू द राइट साइड में अगर आप z की वैल्यू डिफरेंट रियल नंबर्स पुट करते हो तो विल गेट डिफरेंट रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स। ये जो सर्कल की इक्वेशंस है, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये आपकी z की वैल्यू चेंज करने पे आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द लेवल कर्व और कॉन्टूर डायग्राम। तो इसके हम अब डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो, ये जैसे एक पहाड़ है। ओके, दिस इज ए हिल, दिस इज a model hill and its contour map shown in figure here. So the contour map is constructed by passing planes of constant elevation. ये जो डायग्राम में मैं कह रहा था, so these are all constant elevation here, 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 here. ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जितने भी प्लेन है, so they are constant, तो वो आपको z की constant वैल्यू पुट करने से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो what they are doing basically, ये जो 1 2 3 4 5 6 है, दे आर द प्लेन्स। यहाँ पे आपका प्लेन है, तो इस तरह से हम इस पहाड़ को काटते जा रहे हैं along this level and then we just compress that। जो इंटरसेक्टिंग हमारा इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये एक सरफेस है और एक प्लेन से कट कर रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, कर्व आएगा। तो वो कर्व हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। देखो यहाँ पे इस तरह का है, इसको क्या कहते हैं, गिली कहते हैं, ये ओके। तो ये डिफॉर्म्ड वाला पोर्शन जो है, इस तरह से आपका डिफरेंट लेवल पे, इफ यू जस्ट कंप्रेस दिस होल हिल इनटू एक्स वाई प्लेन, सो दिस विल बी द डायग्राम, दिस विल बी द कॉन्टूर मैप ऑफ द मॉडल हिल। समझ में आया आप लोगों को? ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर। यस सर, आ गया। ये वाला पोर्शन एक बार पढ़ लो आप लोग। Familiar with the topographic or contour maps in which a three-dimensional landscape such as a mountain range is represented by two-dimensional contour lines, जो मैंने ग्लोब और सरफेस में बताया आप लोगों को, represented by two-dimensional contour lines or curves of constant elevation. Constant elevation is those planes जिसे काट के हम उसको कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, we just compress it into the XY plane। यहाँ पे आपका XY प्लेन है। ठीक है, दिस इज योर XY प्लेन, ये आपका Z प्लेन है। तो आप जस्ट क्या करोगे, अगर मान लो दिस इज मेड ऑफ पेपर, जस्ट कंप्रेस इट एंड यू विल गेट दिस डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे देखो, contour maps are also useful for studying functions of two variables if the surface z equal to xy is cut by horizontal plane z equal to k, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा था, z equal to k, z की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट ले लेके, तो आपका राइट साइड में वैल्यूज जो होता है डिफरेंट रेडियस के आपको सर्कल मिलता है। ठीक कह रहा है। then so z equal to k are the levels, z equal to k are the level planes। okay, तो इस लेवल प्लेन के साथ आपका जो 3D वाला जो सरफेस है, इसका जो इंटरसेक्शन होगा, तो उस सारे k की वैल्यू चेंज होता जाएगा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, so you can take any constant, so this is called the level curve, जो आपको इसका शैडो xy एक्सिस में दिखेगा। so if the surface z equal to हाँ, then all the points on the intersection we have f xy equal to k, the projection of this intersection onto xy plane is called the level curve of height k or the level curve with constant k. Set of all level curves for z equal to f of xy is called a contour plot or contour map of f. Okay. Now ये वाला example देख लो, f of xy equal to y square minus x square. f of xy equal to y square minus, तो बेसिकली ये क्या है आपका z इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो वैसे तो हमारे पास कोई रास्ता है नहीं 3D में कैसा होगा ये ग्राफ, अनलेस एंड अनटिल वी मेक ए टेबल, बट वो भी हमें उतना हेल्प नहीं करेगा इसका जो डायग्राम है वो समझने में। इसके लिए हमें कॉन्टूर प्लॉट। ठीक है, तो ये जो नीचे आपका एक्स और वाई एक्सिस है उसी को मैंने लेफ्ट राइट साइड में बनाया। तो बताओ ये क्या होगा अगर आप z इक्वल टू 1 ले लेते हो, 2 ले लेते हो, 3 ले लेते हो, 4 ले लेते हो, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा आपका? तो पहले हमें कॉन्टूर प्लॉट करना है z इक्वल टू डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू लेके, फिर हम इसका 3 डायमेंशनल फिगर एज्यूम करेंगे, इमेजिन कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ये क्या है? व्हाट इज दिस? बताओ। हाइपरबोला होगा सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम्म, ठीक है, तो नॉर्मली हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है दैट इज बेसिकली ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इस तरह से इफ यू चेंज इट 1 2 3, तो आपको ये क्या देगा? ये आपको सीरीज ऑफ फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता जाएगा, लाइक दिस, है ना? इस तरह का आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता जाएगा। या फिर मैं गलत कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ यही होगा। और क्या हो सकता है? z इक्वल टू, अब जीरो भी ले सकते हो, तो z इक्वल टू जब जीरो लोगे तब क्या देगा ये? दैट विल गिव यू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो यस सर। दैट विल गिव यू ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां से कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी द ओरिजिनल 3 डायमेंशनल डायग्राम? वही थोड़ा कोन जैसा, कौन जैसा? जैसे आपने पहले बनाया था। पक्का? तो मतलब अच्छा जीरो से अच्छा लेके अच्छा, इसमें हम उन दो। नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 की जगह पे। सर जेड की नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन मतलब आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। सर वही हम्म उन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एम्बेडेड वाला एरिया, ये जो एक्स वाई और माइनस एक्स वाई के बीच में, हम्म तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उनके बीच में एम्बेडेड वाला एरिया। अच्छा, का इसको कहते हैं हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। तो देख लेते हैं डायग्राम। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत करा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, तो दीज आर द हाइपरबोलास बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे बना दिया था। राइट, सो दीज आर द हाइपरबोलास। ये आपका x प्लस वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स, ये दो स्ट्रेट लाइन है बीच में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
तो हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो these hyperbolas like this, वो मैंने rectangular hyperbola बना दिया था, this is not like that, these are all rectangular hyperbola। The hyperbolas we have like this, like this, okay। तो यहाँ पे ये हमारे लेवल्स है, ओके। these will become, यहाँ पे आपका कहाँ गया, बता देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो 0 से अगर आप पॉजिटिव वैल्यू की तरफ दोगे तो आपका ये वाला सेट बनेगा हाइपरबोला का, नेगेटिव दोगे तो आपका ये वाला सेट बनेगा, ठीक है। और आपका 0 दोगे तो दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपके ओरिजिन से पास करता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ओके। तो नाउ दिस विल बी योर सरफेस, दिस विल बी योर सरफेस, दिस इज कॉल्ड आई थिंक हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड और सैडल सरफेस। सैडल सरफेस क्यों कहते हैं, क्योंकि घोड़े के ऊपर हम जो वो रखते हैं लेदर का, जिस पे बैठते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द सैडल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैडल सरफेस, ओके। So in three dimensional, so this basically these are the levels. So these are the values of the z axis. These are the values of the z axis. That means what? मैं आपको ये इमेजिन करने का तरीका बता रहा हूँ, how you are going to imagine these things. तो देखो जीरो पे क्या होगा, जीरो पे आपके ये स्ट्रेट लाइन होगा, फिर 10 यूनिट z एक्सिस के, मतलब 10 यूनिट हाइट पे, ठीक है, 10 यूनिट हाइट पे आपका ये हाइपरबोला बनेगा, 20 यूनिट हाइट पे आपका ये हाइपरबोला बनेगा, 30 यूनिट हाइट पे आपका ऊपर वाला हाइपरबोला बनेगा, सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो ये जो लेवल है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द जेड एक्सिस। तो कॉन्टूर डायग्राम इज नथिंग बट हम टेबल में क्या करते थे, सबकी अलग अलग वैल्यू लेते थे, एक्स वाई जेड तीनों की, और फिर एज्यूम करने की कोशिश करते थे। कॉन्टूर में क्या करते हैं, बिकॉज हमारे पास 2 डायमेंशन में थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज ज्यादा है, क्योंकि हमने कर्व स्केचिंग वगैरह सीखा हुआ है, तो 2 डायमेंशनल कर्व के लिए हमारा नॉलेज ज्यादा है, तो उस नॉलेज को यूज करेंगे। और जो हमारा 3 डायमेंशनल जो एक्स्ट्रा जेड एक्सिस है, उसमें हम कांस्टेंट वैल्यूज लेते जाएंगे, ठीक है। तो इमेजिनेशन का टेक्निक जो है वो समझ में आया आप लोगों को? ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई दिस वन, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग द हाइट 0 1 2 3 4 5 6। इसको आप लोग खुद से ट्राई करो। ये क्या होगा, व्हाट आर दीज? ये क्या है? सर्कल। इलिप्स कहते हैं इसे, यस सर, एलिप्स। है ना। तो दीज आर इलिप्स, तो ये क्या है, सारे कंसेंट्रिक इलिप्स है, सारे जो है ये सारे कंसेंट्रिक इलिप्स है। ये आपका के हो गया सारे, तो नीचे क्या है, k/4 हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई k/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये सारा क्या देगा, आपका कंसेंट्रिक इलिप्स देगा एक साथ इस पे, ठीक है। तो ये सारे जो होगा, तो ये क्या देगा आपका, दीज आर द कंसेंट्रिक इलिप्स, k इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए। 0 पे एक सिंगल आपका वो आएगा, फिर 1 के लिए ये, 2 के लिए ये। तो इफ यू जस्ट
उसी हाइट पे अगर इस इलिप्स को आप लोग लगाते जाओगे, so this will give us something like this surface. ये आपका के है। तो बेसिकली हमारा काम है इसको प्लॉट करना और उसके बाद इसको इमेजिन करना। ये है आपका एलिप्स का इक्वेशन जो है, मैंने 3 लिख जाते हैं। बताओ दोस्तों, हार्ड लग रहा है इसको? इज दिस टफ फॉर यू? हम इसको और स्लो स्लो पेस में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। फिर से सर आप लोग ये इसका यूज कहाँ एग्जाम्पल। होता है इसका? हाँ, यूज सर इस बहुत जगह कॉन्सेप्ट पे का होगा, यूज बहुत जगह पे होगा आप लोगों का आगे चल के। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपका यहाँ पे यूज होगा फॉर ड्राइंग 3 डायमेंशनल ग्राफ, इसके ड्रॉ के पर्पस के लिए आप लोगों के लिए काम आएगा। z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, अननोन आपको दे देगा और बोलेगा कि इसका इक्वेशन का डायग्राम कैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। तो आपको कॉन्टूर प्लॉटिंग की हेल्प लेनी है, तब जाके आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, आगे चल के भी मैंने आपको कार्टोग्राफी में यूज दिखाया। फिर आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से है, डेटा साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, स्टैटिस्टिक्स में एप्लीकेशन है। हम मेरे पास केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स है ना? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे का आगे चल के इसका काफ़ी यूज होगा, कि मैंने थोड़ा बहुत डेटा साइंस पढ़ी है, सो आई नो। डेटा साइंस का इसमें काफ़ी यूज है, मतलब इस कॉन्टूर प्लॉटिंग का डेटा साइंस में काफ़ी यूज। तो गो थ्रू दिस एग्जाम्पल्स, ओके, go through these examples, okay, then we'll see. तो कॉन्टूर प्लॉटिंग को पहले लेवल कर्व था, उसके बाद लेवल सरफेस आ गया। लेवल सरफेस में क्या हो गया, हमारा एक और वेरिएबल बढ़ गया, उसमें इसको कैसे यूज करना है हम नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, दैट्स इट फॉर टुडे।